Good morning, students. So, you have completed chapter number 20 in your previous class. So, let us start with chapter 21, that is life is precious. Life is precious. What do you mean by precious? प्रेशियस क्या होता है? मीन्स जो मोस्ट वैल्यूएबल, मोर वैल्यूएबल जो होता है, जो अमूल्य होता है, उसे हम प्रेशियस बोलते हैं. लाइफ इज़ प्रेशियस मतलब सबके लिए अपनी लाइफ बहुत वैल्यूएबल है. So in this chapter we are just going to know about how precious our life is and how to be safe in our life. So let us start the chapter. Ramesh, a traffic police officer, remained very busy for the whole day. Ramesh, he is a traffic police officer. He remained very busy for the whole day. मतलब for the complete day he was very busy on that day. He had made approximately, see the word approximately means nearly. He made approximately 25 चालान्स in the whole day. मतलब एक complete day में उसने 25 चालान्स लिखा था. he had made मतलब उसने इतना सारा चालान मीन्स एक ऑफिशियल फॉर्म ऑफ रिसिप्ट होता है. जैसा आप किसी से पैसा ले रहे हो तो उनको एक रिसिप्ट भी देना पड़ता है. सो एक ऑफिशियल फॉर्म ऑफ रिसिप्ट ये क्यों देते हैं? ये चालान स्पेशली कहाँ लिखते हैं? कोई ट्रैफिक ऑफेंस करते हो तो आप, मतलब ट्रैफिक रूल्स फॉलो नहीं किया हो, ट्रैफिक की रोड पे जैसा चलना है उसके बिना उसके ऑपोजिट में आपने कुछ काम किया हो, देन व्हाट द ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर्स यूज टू डू, दे यूज टू राइट चालान्स. मतलब जैसा आपके पास जो चीज़ होना है वो नहीं है तो सबका अलग अलग प्राइस होता है, उस हिसाब से वो चालान लिख के देते हैं. सो इन दैट वे ही हैड मेड 25 चालान्स. मतलब एक दिन में उसने 25 चालान्स बनाया था. 12 मोटरसाइकिल राइडर्स वर नॉट wearing the helmet. So इनमें से 12 motorcycle riders, those who are not wearing their helmet. Some car drivers were driving the car without fastening the seat belt. So some car drivers were not using their seat belts. They are not fastening their seat belts. Fastening the seat belts means using of the seat belts. तो ताकि seat belts use करने से क्या होता है? If they met with an accident, they will be safe at that time. 2 ड्राइवर्स वर ड्राइविंग आफ्टर ड्रिंकिंग. सो उसमें से 2 ड्राइवर तो ड्रिंक करके ड्राइव कर रहे. ड्रिंक करके ड्राइव करना मतलब दे हैव टेकन अल्कोहल लेके वो ड्राइव कर रहे, विच इज़ नॉट गुड बिकॉज आफ्टर टेकिंग अल्कोहल कोई भी पर्सन को अपने ऊपर कंट्रोल नहीं रहता है. दैट्स वाई नो वन शुड ड्राइव आफ्टर ड्रिंकिंग अल्कोहल. One scooter rider was driving while talking on the mobile phone. So one person who is driving a scooter, what he is doing, he is driving and along that he is talking on the mobile phone also, which is not good because if he focuses more on the more on his conversation, मतलब वो बातें पे ज़्यादा ध्यान दिया जाए तो वो रोड पे फोकस नहीं कर पाएंगे and he may met with an accident. Next, whereas the other one was driving so fast that he crossed the red light. देखो दूसरा ऐसा जा रहा है कि इतना फास्ट जा रहा है, वो कहाँ है क्या है वो उसको कुछ भी पता नहीं चल रही है. उसको रेड लाइट है. व्हाट आर रेड लाइट मीन्स? रेड लाइट मीन्स वी हैव टू स्टॉप एट दैट पर्टिकुलर पोजीशन. बट उसने ये भी ऑब्जर्व नहीं किया एंड ही इज़ जस्ट कंटिन्यूइंग ऑन. वो रेड लाइट को भी क्रॉस करते हुए जा रहा है. सो 12 मोटरसाइकिल राइडर्स who are not wearing helmet, then some car drivers, they are not using their seat belts, some drivers are driving after drinking, and one scooter rider was driving while talking on the mobile phone, whereas the other is going so fast that he even can't see the red light also.
Ramesh was thinking that some people not only put their life in danger for their own convenience, मतलब रमेश ये सोच रहा है कि कुछ लोग क्या करते हैं, दे पुट देयर लाइफ इन डेंजर, वो अपनी लाइफ को ही डेंजर में रख देते हैं क्योंकि उनकी खुद के बेनिफिट के लिए। मतलब वो क्यों ऐसा कर रहे, वो उसको फ़ोन पे बात करना था तो वो फ़ोन पे बात करते आएगा और दूसरों को धक्का देगा। सो along with him the others who may drive on the road may also suffer, दूसरों को भी सफ़र करना पड़ता है for their own convenience, मतलब खुद के बेनिफिट के लिए, खुद की यूज़ के लिए। ओके, बट what they used to do, they also create a risk for the life of others, दूसरों के लिए भी वो रिस्क क्रिएट करते हैं बिकॉज उसने रेड लाइट देखा नहीं और चाह रहे तो एक्चुअली उधर से व्हीकल्स आते हैं तो उधर फिर अगेन एक्सीडेंट होने की चांसेस है। सो इन दिस वे द पीपल आर not only putting their life in danger, but along with them they are creating a risk for the life of others too. Why people do not understand that the traffic rules are for their safety, रमेश ये सोच रहा है कि अरे ट्रैफिक रूल्स किसके लिए बनाया गया है, बिकॉज इफ़ देर इज़ मोर इफ़ देर वर नो ट्रैफिक रूल्स, क्या होता है अगर ट्रैफिक रूल्स है ही नहीं है तो कोई कुछ रूल्स फॉलो नहीं करेंगे, सब अपनी मर्जी से करेंगे तो मोर एंड मोर एक्सीडेंट्स विल टेक्स प्लेस। दैट्स वाई we have some traffic rules for our own safety and it is necessary to follow them, and we have to follow them. It is necessary means it is very compulsory, it is very compulsory to follow certain rules which are given by the traffic police. सो रमेश पूरा दिन ये चालान वालान लिख के सब लोगों के बारे में सोचा था। वो लोग क्या करते हैं, अपनी कन्वीनियंस के लिए अपने लिए भी अपनी लाइफ को भी डेंजर में रखेंगे और दूसरों की लाइफ को भी रिस्क में डाल देते हैं, विच इज़ नॉट गुड। सो इन ऑर्डर टू अवॉइड ऑल दिस व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू फॉलो द प्रॉपर ट्रैफिक रूल्स। जैसा कोई भी रोड पे जब ड्राइव करते हैं उनके लिए ड्राइविंग लाइसेंस मिलता है, तो ड्राइविंग लाइसेंस कब मिलेगा उनको, उनको प्रॉपरली एक ट्रैफिक पे कैसा चलानी है, उसके रूल्स क्या है, रेगुलेशंस क्या है, रोड पे कोई सिंबल्स हो तो उसको कैसा फॉलो करनी है, ये सब पता चलनी चाहिए। देन ओनली ही और शी कैन ड्राइव ऑन द रोड। नाउ you can see a picture here, figure 21.1, सेफ्टी रूल्स फॉर ट्रैफिक, है ना, ट्रैफिक में कैसा क्या सेफ्टी रूल्स फॉलो करनी है। जैसा रेड लाइट है तो आपको स्टॉप होना है, ग्रीन मतलब यू हैव टू गो, ये आपको शुरू से ही पता है। नाउ हेलमेट इज़ नॉट ए बर्डन, इट इज़ योर सेफ्टी। बहुत लोग क्या सोचते हैं, हेलमेट रखेंगे तो थोड़ा हैवीली फील कर सकते हैं अपनी हेड पे, और एल्स कुछ सोचते हैं अपनी हेयर स्टाइल भी ख़राब हो जाए। वी शुड नॉट थिंक इन दैट वे, ऐसा नहीं सोचना चाहिए हमको, बिकॉज इफ़ वी हैव हेलमेट, कभी कोई गाड़ी से अपना एक्सीडेंट भी बाई चांस हो गया तो इफ़ वी हिट ऑन एनी सरफेस, मतलब रोड पे बहुत तरह तरह की सरफेसेस होते हैं, कहीं पत्थर हो सकता है, कहीं साइड की डिवाइडर्स हो सकते हैं, किसी पे भी लगेगी तो भी अपनी बॉडी पे जब इंजरी आएगी तो अपनी लाइफ के लिए वो बड़ी रिस्क है। तो अगर अपनी हेड को हमने बचाया तो it will be more safe, it will be more safer for us. So we should wear a helmet for our safety, we shouldn't think it as a burden, उसको burden जैसा मत लीजिएगा। नाउ लुक एट द फिगर एंड डिस्कस द फॉलोइंग। अभी ऊपर जो पिक्चर दिया है उसको देखते हुए हम कुछ पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। ओके, What should we do when there is a red light at the crossing? कहीं जहाँ रोड क्रॉस कर रहे हो आप, उधर रेड लाइट हो तो आपको क्या करना चाहिए? वी शुड स्टॉप और वी शुड नॉट गो फर्दर। आगे प्रोसीड नहीं होनी है और रेड लाइट देखते देखते अपन को स्टॉप होना चाहिए। What should we do while driving a vehicle on a speed breaker? जैसा रोड पे जब आप चलते हो बहुत जगह में आपको स्पीड ब्रेकर्स भी आते हैं और स्पीड ब्रेकर को देखा ही नहीं और फटाक से जाएंगे तो आपकी उधर भी लगने की चांसेस है। सो व्हाट शुड वी डू? वी शुड रिड्यूस आवर स्पीड ब्रेकर्स इसीलिए बीच बीच में रखते हैं ताकि कोई ओवर फास्टली स्पीड में जा रहे तो ये स्पीड ब्रेकर्स थोड़ा हाइट में होते हैं तो उसको देख के अपन अपना स्पीड रिड्यूस करेंगे। सो व्हाट इज़ द फर्स्ट थिंग दैट वी हैव टू डू इज़ वी शुड रिड्यूस आवर स्पीड। थर्ड वन, if there is a cross mark on the icon of a horn, then
व्हाट वी शुड नॉट डू, जैसा आपको रोड पे कई जगह एक हॉर्न की सिंबल होता है, हॉर्न की सिंबल होके उसके ऊपर क्रॉस लगाया जाता है, देन व्हाट वी शुडंट डू, तो उस टाइम पे हमको क्या नहीं करना चाहिए, वी शुडंट ब्लो द हॉर्न, उस टाइम पे हमको हॉर्न नहीं बजाना, मतलब आपको हॉर्न नहीं दे सकते हो, इसीलिए हॉर्न और उसके ऊपर क्रॉस भी लगाया है, तो आपको उधर हॉर्न नहीं देना चाहिए। वी शुड वॉक ऑन विच साइड ऑफ द रोड, हमेशा आपको रोड की किस तरफ चलना चाहिए, वी शुड वॉक ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द रोड, रोड की लेफ्ट साइड में आपको वॉक करना चाहिए। नाउ टर्न योर पेज। वाई वन शुड नॉट ड्राइव आफ्टर बीइंग ड्रंक, मतलब कोई बहुत लोग ड्रिंक करके ड्राइव करते हैं, सो आफ्टर बीइंग ड्रंक, आफ्टर टेकिंग ड्रिंक्स, वाई शुडंट वी ड्राइव, क्यों ड्राइव नहीं करना चाहिए। आई डिडंट राइट दैट आंसर हियर बिकॉज दिस इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन एंड अ लिटिल बिट लेंथी ऑल्सो, मतलब 2 और 3 पॉइंट्स हमको इधर लिखनी है, सो विल राइट अगेन ऑल दिस इन आवर नोटबुक। सो एक्चुअली ड्राइव करके क्यों नहीं करना चाहिए, आफ्टर कंज्यूमिंग अल्कोहल, मतलब अल्कोहल जब आप लेते हो तो उस पर्टिकुलर पर्सन को क्या होते हैं, वो अपनी ब्रेन के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं रहता है, ही कांट थिंक प्रॉपरली, ही इज़ नॉट इन अ स्टेबल कंडीशन, एक स्टेबल कंडीशन में नहीं होता है। तो अगर आप अपनी मेंटल कंडीशन, आपकी मेंटल कंडीशन एक स्टेबिलिटी नहीं है, तो आप कैसा अच्छा से सोच सकते हो, बिकॉज यार ब्रेन डजेंट वर्क एट दैट टाइम, उस टाइम में पर्टिकुलरली उस पर्टिकुलर पर्सन की ब्रेन वर्क नहीं करता है, बिकॉज ही इज़ नॉट अवेयर ऑफ व्हाट इज़ हैपनिंग अराउंड हिम। सो इसी टाइम्स पे ज़्यादातर एक्सीडेंट्स होने की चांसेस है, दैट्स वाई वी शुड नॉट ड्राइव vehicles after being drunk because it may lead to accidents. Now draw and write the meaning of those सिम्बल्स ऑफ रोड सेफ्टी इन योर नोटबुक विच यू सी ऑन द साइड्स ऑफ द रोड। जैसा अभी आप कई बार बाहर ट्रैवलिंग करते हैं तो रोड साइड में तरह तरह के सिम्बल्स देखते हो, सो वी हैव टू राइट द सिम्बल्स एंड इवन देयर मीनिंग्स ऑल्सो, दिस ऑल्सो वी कैन डू इन आर कॉपी वर्क। ओके, सो वी यूज टू ऑब्जर्व सो मेनी टाइप्स ऑफ सिम्बल्स, जैसा आप क्या क्या सिम्बल्स देखते हो, जैसा अभी हमने डिस्कस किया, डू नॉट ब्लो हॉर्न, दैट इज़ अ सिम्बल, कहीं पे ब्रिज हो तो ब्रिज के लिए भी होता है, या कहाँ से पेडेस्ट्रियंस को चलना है, कहीं हॉस्पिटल है उसका भी सिग्नल होता है, स्कूल है तो स्कूल अहेड, ऐसा भी सिंबल्स होते हैं। सो यू कैन राइट एनी ऑफ दोज सिंबल्स विच यू कुड हैव सॉ। नेक्स्ट, विच यू कुड हैव सीन, थिंक एंड आंसर द फॉलोइंग। See here, figure 21.2, a road accident. We can see a road accident here. Someone met with an accident, is lying on the road. We can see a person who met with an accident is on the road. Then what do the people do? आप क्या इमेजिन करते हो, ऐसा कभी रोड पे एक्सीडेंट होता है, कोई उधर रोड पे गिरा हुआ है, तो आप देन मोस्ट ऑफ द पीपल क्या क्या कर सकते हैं, ये आप इमेजिन करके इसके लिए कुछ फ्यू पॉइंट्स लिखना है आपको। इज इट ओके? सो आप क्या करते हो इसी सिचुएशन में, इधर आप देख सकते हो बहुत सारा पीपल है ना, पीपल आर गैदर्ड हियर एंड देयर, हर जगह लोग हैं, और अगर मान लीजिए उनमें से बीच में कोई जैसा कि डॉक्टर है या मेडिकल स्टाफ है या नर्स है, तो वो क्या करेंगे, इमीडिएटली उनको फर्स्ट एड करेंगे, और समबडी में कॉल द पुलिस। कुछ लोग क्या करते हैं, नहीं अरे इधर कुछ एक्सीडेंट हुआ है, लेट अस कॉल द पुलिस सो दैट दे कैन हेल्प देम, या कुछ लोग सोचते हैं कि नहीं अगर उसको ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है, ओवर ब्लीडिंग हो रही है या कुछ हो रही है, तो तुरंत हॉस्पिटल ले जाने की कोशिश करते हैं। और कुछ लोग ऐसा भी सोच सकते हैं कि अभी इस सिचुएशन से हमारा कोई लेना देना नहीं है, they just avoid that situation and they want to go away from there and so ऐसी सिचुएशन में अपन को क्या करना चाहिए। एक्चुअली कुछ लोग तो देखते ही रह जाते हैं, बस हाँ क्या हो रही है देखते हैं, कोई किसी को फ़ोन करेंगे क्या, कोई डॉक्टर आएंगे या पुलिस आएंगे, क्या हल्ला होएगी, ऐसा देखते रहते हैं। सो एक्चुअली हमको ये सब नहीं करना चाहिए, अगर आपसे हो पाएगी इमीडिएटली कुछ फर्स्ट हेल्प दो उसको, बट इफ़ यू आर नॉट अवेयर ऑफ डूइंग दैट फर्स्ट एड, कई बार होता है ना उस सिचुएशन में आपसे कुछ नहीं हो रही है, देन वी कैन कॉल एन एम्बुलेंस और वी कैन कॉल टू द पुलिस स्टेशन, वी कैन हैव अ कॉल टू द
पुलिस स्टेशन, वी कैन डू दीज थिंग्स। एंड बेटर कभी भी ऐसा मत करिए कि इस सिचुएशन को अवॉइड करके चले जाए। वी शुड नॉट डू दिस बिकॉज ऐसी सिचुएशन कभी किसी से भी हो सकता है। सो व्हाट वी शुड डू इज़ वट एवर द हेल्प दैट वी कैन डू एट दैट टाइम, वी हैव टू डू दैट। ये करने की कोशिश करना चाहिए। सो चिल्ड्रन, नाउ go through this video and read the chapter till here and try to write few sentences about the think and answer the following also. Thank you.